regularly called by movie production houses. The thing is, they don't have the bandwidth because they have to choose proven talent because they're putting that kind of money on a product which is going to cost crores. So they want proven talent. Where do they go? They go to TV, and now increasingly they go to digital. So probably if you're a casting director, get in touch with us at Culture Machine. We create content regularly, and it's a great way to actually focus on new talent because we can't afford Bollywood talent. So necessity is the mother of invention, and that's the reason why we have to break new talent. Well, the necessity is the reason why we created Talent Next, so that's a great explanation, Samir. I think we have one more question waiting. Right here. Yep. Hi. Okay, so this question is directed towards Salim. I was just wondering, so what is the most essential thing you look at while forming a crew? What do you mean by forming a crew? Like, let's say if you want to pick your actors and even background actors, or is that a platform for in Talent Next? Like, I'm just wondering. I'm a musician, so if talking about, if I have to choose like a musician, let's say a keyboardist or a Shainai player or an oboe player or whatever, it's something which touches me. I mean, I don't really look at what the person can do, how many different instruments that guy can play or whatever. For me, it's just if I relate to his playing or her playing, or the music he or she does, or the singing she does or he does, then that really is my calling. That I feel like I should connect with the person. But Ashu said a very interesting thing about he was looking for these oboe players during Jodha Akbar. And many a times when we do a song, we look for a new voice. And even though there are so many new voices, it's always like, lekin that thumri voice, that little, that age in that voice. And sometimes it's very difficult to find in Mumbai city. And you definitely get something like that more in, the regions of Punjab and Uttar Pradesh and Jammu and stuff like that. And those, a lot of artists, they don't really want to come down to Mumbai. They're very comfortable in their own spaces. They're very happy. Some of them are radio artists. They perform on radio and they're phenomenal. And believe me, nobody knows about them in Mumbai. There's so many, and it's really something which you have to really research if you need a fantastic voice. For instance, like a female voice, which is like in her 50s or 60s or whatever. You need that kind of voice for a film song. It's very hard to find. You only have your Kavita Sheth or your Malini Avasthi or whatever, a couple of other artists. But if you're really looking for a new voice, it's very, very difficult. I believe with TN, it will make a difference. If it reaches out to those people, if it reaches out to those artists and those singers and those musicians, we in Mumbai and the entire world will have a great time listening to these and discovering these voices. That's well said, Salim. Thank you. Hi, this is Ravi. Hi, this is Ravi, and my question to Salim sir. Hi, this side. सर टैलेंट की बात हो रही है तो अगर लेजेंडरी की बात ना हो तो थोड़ा सा अधूरा लगेगा. लोग इस समय चाह रहे हैं कि एक म्यूजिशियन पर एक बायोपिक बने. सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि आर.डी. बर्मन पर एक बायोपिक बनना चाहिए, आप क्या कहेंगे इस पर? आर.डी. बर्मन जी पे एक फिल्म बन चुकी है ऑलरेडी, विच इज़ कॉल्ड पंचमदा, आई थिंक इट्स कॉल्ड. अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म एक्चुअली सोनी पर आई थी और it's very sad that it didn't really get the kind of viewership it required. But I think it would have been great if it really got to digital content and because that way to Panchamda pe film bani hai. Just to answer your question, it came out about 3 years ago. It released on Sony Mix or so. I don't know which channel. आपको लगता है कि mass audience तक पहुंचनी चाहिए उनकी बायोपिक? बेशक, I think उनका म्यूजिक आज भी जिंदा है, उनका म्यूजिक आज भी हम सुनते हैं. तो बेशक पहुंचनी चाहिए. बट मेरे हिसाब से टेलीविज़न अपनी जगह पे बहुत ही कमाल कर रहा है. लेकिन अगर ये सेम चीज़ अगर डिजिटल पे आ जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ टेलीविज़न पे आती है वो पूरी दुनिया नहीं देख सकती बिकॉज ऑफ द प्रोग्रामिंग द वे इट इज़. इंडिया ऑफ कोर्स वॉचेज इट. जितना इंडिया देखता है उतना देखता है, जितना बीम होता है बाहर. बट जैसे पंचमदा जैसे वो बायोपिक जैसे बनी थी, अगर उसी तरह डिजिटल पे अगर वो बने तो कनाडा, अमेरिका, यूके, इस तरह की कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग हैं जो ये डिजिटल कंटेंट कंज्यूम कर पाएंगे. तो आई थिंक इट्स बेटर इट गोज ऑन डिजिटल एज वेल. Hi, Karan, this is Alok.
आप बस आवाज़ सुन लीजिए, आपके सामने ही हूँ। हाँ लोग हाँ सवाल ये है, एज अ प्रोड्यूसर और एज अ डायरेक्टर जब आप फिल्में करते हैं तो कास्टिंग पे कितना ध्यान आपका जा पाता है और किस तरीके का डिफरेंस होता है एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर के होने के नाते? देखिए, प्रोड्यूसर होने के नाते तो अब कास्टिंग में मैं कभी घुसता ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टर का माध्यम है। जब मैं डायरेक्टर होता हूँ तो ऑफ कोर्स कास्टिंग इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो आजकल जैसे बहुत अहमियत है कास्टिंग पे, और ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे जो किरदार होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो अभी वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट के कैरेक्टर्स नहीं रहे। अभी देयर आर लेयर्स एंड देयर आर ग्रे एरियाज एंड एक ऊंदा एक्टिंग की बहुत ज़रूरत होती है। एंड आई थिंक जस्ट फॉर दैट आई थिंक वी हैव टू बी एक्स्ट्रा पर्टिकुलर। तो कास्टिंग इज़ अ बिग ड्रॉन आउट प्रोसेस, अभी बहुत बड़ा प्रोसेस बन चुका है वो हमारे लिए। इट्स नॉट सिंपल कि हम किसी ने उस फिल्म में काम किया है तो उसे कास्ट कर लो। अभी नए चेहरे की बहुत ज़रूरत होती है, और ये नए चेहरे जो होते हैं, नए टैलेंट जो होता है, जो हुनर जो होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है टू गो टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड पीपल टू फाइंड दैट। आजकल ये होता है, फ्रेश जो वर्ड बन चुका है ना, वो बहुत बड़ा वर्ड बन चुका है कि सब चाहते को कोई फ्रेश आ जाए, कुछ अलग हो, कुछ नया हो। वही किरदार अगर हम बार बार उसी एक्टर के पास जाएं, जिसने फादर का रोल किया होगा, तो तो आई फाइंड दीज कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग अराउंड मी ऑल द टाइम कि लेट्स फाइंड अ न्यू फादर। आई मीन, वो न्यू फादर का क्या मतलब होता है पता नहीं। नाउ शी इज प्लेड अ मदर इन 2 movies, वी मस्ट फाइंड अ न्यू मदर। तो नया बाप, नई माँ, नए भाई बहन, कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग एरियाज। It's all become about kind of finding new talent and platforming it on cinema, क्योंकि जो भी नया होता है और जो अलग होता है, उसे ज़्यादा आई थिंक एक्सेप्टेंस मिलती है, एंड यू गेट मच मोर प्रेज फॉर एक्चुअली ट्राइंग समथिंग डिफरेंट। पहली फिल्म की अगर कास्टिंग का अगर कोई ट्रिविया आप देना चाहें जिसमें आपको मशक्कत काफ़ी हुई हो? पहली फिल्म, मेरी पहली फिल्म? जी जी जी। मैं तो हर जगह गया था, मैं भिखारी बन चुका था उस फिल्म में। 9 हीरोइंस ने मुझे ना किया था टू कास्ट रानी मुखर्जीज रोल। मैंने सोचा कि मुझे कोई ना मिले तो मुझे शॉर्ट स्कर्ट पहन के वो रोल करना पड़ेगा। इवेंचुअली 8 हीरोइंस सेड नो टू मी, एंड देन आई वेंट टू रानी, जिन्होंने गुलाम किया था और करने वाली थी, वो कर रही थी, और उसके पास गया था क्योंकि आयरॉनिकली इट वाज सजेस्टेड टू मी बाय बोथ शाहरुख एंड आदित्य चोपड़ा, एंड दे सेड कि एक पिक्चर आई थी उसकी, राजा की आएगी बारात, तो उसने एक एक्सप्रेशन दिया था कि ट्रेलर चल रहा था उस दौर में, कुछ एक फैंटास्टिक सा एक मेन स्ट्रीम एक्सप्रेशन दिया था रानी ने। दोनों ने मुझे रेकमेंड उसी एक ही दिन पे किया था कि गो टू रानी, बिकॉज मैं नाम नहीं लूंगा, 8 हीरोइंस ऐसे नो टू मी, और किसी का फोन भी वापस नहीं आया था। मैंने नरेट किया था, जिस तरह प्रहलाद कहते हैं ना, उस टाइम मैंने स्क्रिप्ट किसी को नहीं दिया था, बाकायदा नरेशन दी थी मैंने, बहुत ड्रामेटिक नरेशन दी थी। फिर भी उन्होंने, फिर उसके बाद सलमान के रोल के लिए मैंने पता नहीं कहाँ गया था, तो फाइनली इट वाज अ बिग तो ट्रिविया क्या बताऊँ, यही आई हैड टू रियली बेग फॉर बोथ सलमान एंड रानी टू बी ऑन बोर्ड। वो दौर अलग था, वो दिन अलग थे, क्योंकि मुझे इतना ही था कि पहली सीन में रानी मुखर्जी को मरना था, वो इट वाज शी वाज डाइंग। तो मुझे मेरे पापा ने कहा था कि अरे कोई नई लड़की होगी वो मर जाएगा, कोई केयर भी नहीं करेगा कि वो मर गई पहले सीन में, यू नीड सम काइंड ऑफ अ स्टार to kill her in the first scene. तो इसलिए मैं चाहता था कोई जाना माना सा चेहरा हो। तो it's been, I mean, I'm sure Ashutosh will tell you more stories about the casting of Lagan, क्योंकि वहाँ इतनी पूरी जो क्रिकेट टीम कास्ट